Okay, so ninth class, in the last class, we discussed about disease, we discussed about health, and we also discussed about that what's the difference between being healthy and being disease free. So after that, we move towards the next topic, that what does the disease look like? कि एक डिसीज दिखती कैसे है, राइट? या फिर हमें पता कैसे चलता है कि किसी को डिसीज है. So we talked about the साइंस एंड सिम्टम्स, राइट? सिम्टम्स वो होते हैं जो एक पर्सन फील कर सकता है, राइट? एंड द सिम्टम्स आर द चेंजेस विच यू यूजुअली टेल टू अ डॉक्टर दैट these are the changes that I'm feeling in my body. Then the physician or the doctor looks for a particular sign in order to identify a particular disease. Okay. So today we are going to discuss about the causes of diseases. कि ये जो disease है जो हमारी body में इतना discomfort कर देती हैं, कुछ diseases तो ऐसे हैं जो death तक cause कर देती हैं, तो उनके कारण क्या हैं, उनके reasons क्या हैं, क्यों disease हो जाती है. So the causes of diseases can be categorized into two major divisions or two major categories, that are infectious causes and non-infectious causes, right? कुछ ऐसे causes हैं जो infectious हैं. Infectious का मतलब can be transmitted from one person to another person, and the next is non-infectious causes मतलब cannot be transmitted from one person to another person. Okay, so let's first discuss the very first category, that is infectious causes. तो infectious causes में कौन आते हैं? यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं या माइक्रोब्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस कॉजेज. इनको हम क्यों इन्फेक्शियस कॉजेज बोलते हैं? बिकॉज दे कैन easily be transmitted from one person to another person, right? उसके बाद ऐसी diseases where microbes are the immediate causes, such diseases are called as infectious diseases, right? In addition to that, it looks very obvious as well कि जो infectious causes हैं, infectious causes will cause the disease, or infectious causes will lead to the disease, which are called as infectious diseases. Infectious का मतलब क्या होता है? Which can be transmitted from one person to another person. And it's very very obvious क्योंकि microbes है, and microbes can easily be spread in the community, and क्योंकि microbes community में spread हो सकते हैं, तो कैसे हैं? Disease causing microbes हैं. So it's very very obvious that they will cause the disease to spread with them, right? After that, the next category is non-infectious causes, right? Then there are various different other reasons which can also lead to disease. And sometimes those reasons are internal or present inside our body. So those reasons are called as non-infectious causes and are usually internal. Now let's just try to understand this topic with the help of example, right? Let's just take the example of cancer. Some cancers are actually caused by genetic abnormalities, right? Genes में change हो जाता है, उसकी वजह से cancer हो जाता है. Let's just discuss the example of high blood pressure. ये वाली जो डिसीज़ है आप लोगों ने यूजुअली सुनी होगी. यूजुअली जो फैमिली है या इमीडिएट फैमिली है, कजन्स हैं या कुछ भी है, आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स तो बहुत सारे मिल जाते हैं, है ना? तो यूजुअली हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज. तो अब आप देखो, यहाँ पे कोई पैथोजन का रोल नहीं है, यहाँ पे कोई माइक्रोब का रोल नहीं है, बट स्टिल डिसीज इज देयर, डिसीज इज प्रेजेंट. जब कोई माइक्रोब नहीं है, जब कोई पैथोजन नहीं है, so it's very very obvious that it cannot be transmitted from one person to another person, right? That's why these causes are called as non-infectious causes. And now let's just discuss a term which is related to this,
वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो आप अंडरस्टूड ही है, तो नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज कैसी डिसीज करते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज करते हैं, मतलब द डिसीजेस which do not spread in the community are called as non-infectious diseases, or which do not spread from one person to another person. And it's very very obvious, and we have even discussed it, that these type of diseases are not caused by infectious agents, but there are several other reasons which lead to the development of non-infectious diseases, right? Okay. तो ये तो बात हुई इनकी कैटेगराइजेशन की, दैट व्हाट आर द कैटेगराइजेशन ऑफ कॉजेज ऑफ डिसीजेस. बट if we try to enlist various causes of diseases, let's just try to understand them. Usually, whenever we try to define the causes of diseases, we can categorize them as the primary cause, secondary cause, tertiary cause, and so on. Right? चलिए, इसके बाद हम इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं एक बेबी का. एक छोटा सा बेबी है जो एक कम्युनिटी में रहता है, उसके साथ उसके और भी सेम एज के कुछ और चिल्ड्रन हैं, राइट? एक नेबरहुड है जहाँ पे उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. ओके, हम यहाँ पे एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो ठीक ठाक हैं, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, राइट? बस सर्वाइवल के लिए ठीक ठाक फैसिलिटीज़ हैं. ओके, तो वहाँ पे हम एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को स्टडी करेंगे और उसमें एक फोकस रहेगा एक बेबी पर, राइट? हमने ध्यान दिया कि क्या हुआ, थोड़े थोड़े टाइम बाद वो बच्चा बीमार हो जाता है, राइट? बट जो उसके नेबरिंग वाले जो लोग हैं वो यूजुअली बहुत कम बीमार पड़ते हैं, जो उसके सेम एज वाले बच्चे हैं वो यूजुअली उतना बीमार नहीं पड़ते. ओके, तो जो प्राइमरी कॉज ऑफ डिसीज होगा, हो सकता है वो पैथोजन हो. पैथोजन मतलब ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिसीज, राइट? हो सकता है कोई पैथोजन उसकी बॉडी में एंटर कर गया हो सकता है उसके हाउस होल्ड में, या जो उसका एनवायरनमेंट है, जो वो डेली उसका जो भी काम करता है उसकी वजह से उसकी बॉडी में पैथोजन एंटर कर गया हो. दैट कैन बी वायरस, दैट कैन बी बैक्टीरिया, दैट कैन बी फंजाई, प्रोटोजोआन और वर्म. तो उसकी एंट्री करने की वजह से कोई बीमारी हो गई, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉज ऑफ डिसीज. बट ज़रूरी तो नहीं है कि पैथोजन ही एंटर किया हो. यूजुअली ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो मैं एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, मैंने आपको बताया कि एक हम नेबरहुड की बात कर रहे हैं, तो वो जो हम जिस एग्जाम्पल को स्टडी कर रहे हैं यूजुअली उसके नेबर्स उतने ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते, बट जो बेबी है वो बार बार बीमार हो जाता है. तो हो सकता है उसका जो जेनेटिक अरेंजमेंट है ना, वो कुछ ऐसा हो, उसके जो जेनेटिक अरेंजमेंट है उसमें कुछ डिसऑर्डर्स हो, जिसकी वजह से वो बार बार बीमार हो जाता है. जब आप हायर क्लासेस में जाओगे देन यू विल स्टडी इन डिटेल अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर्स. बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल आपने कुछ एक जो सबसे कॉमन शायद देखा भी होगा, दैट इज डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम क्या होता है? फ्लैट फेस्ड कुछ लोग होते हैं. अगर आपने किसी अपने फ्रेंड्स या फैमिली में किसी को देखा होगा, कुछ लोग होते हैं दैट आर सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम. उनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? उनका जो फेस होता है वो फ्लैट होता है, थोड़ी सी मेंटल रिटार्डेशन भी आ जाती है, दो वो अपना नॉर्मल लाइफ जो है वो लीड कर सकते हैं, राइट? जो उनके पाम होते हैं वो भी फ्लैट होते हैं, और जो हेड होता है वो बिल्कुल चौड़ा होता है, चपटा सा होता है, राइट? सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाउन सिंड्रोम एंड इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट? हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसके जेनेटिक अरेंजमेंट में कोई दिक्कत हो, या उसको जेनेटिक डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से वो बार बार बीमार हो जाता है. Now, in addition to that, there are several other causes of diseases. नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. तो ये भी एक कॉज है जिसकी वजह से डिसीज हो सकती है. नाउ एट दिस पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ज़रूरी नहीं है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से सबको ही डिसीज होगी. नाउ लेट्स जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ बिग सिटीज लाइक दिल्ली एंड मुंबई, जहाँ पे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, बट स्टिल
वहाँ पे इतने सारे लोग भी रह रहे हैं. So it's not that everyone is falling ill due to environmental pollution. Someone or some people are capable to do well or perform well because they have good immunity, and in addition to that they are able to take care of them properly, right? वो अपना अच्छे से ध्यान रखते हैं, like how to have a how to maintain a good health by having a good diet, by keeping themselves fit, by exercising well. So that's how there are some methods by which you can keep yourself fit, right? तो बट स्टिल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हमेशा एक कॉज रहेगा डिसीज का, क्योंकि अब आप यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करो कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एक ह्यूमन बीइंग है जिसके लंग्स ऑलरेडी वीक है, राइट? जिसके लंग्स में ऑलरेडी कुछ ना कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसको रेस्पिरेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको अस्थमा है, राइट? अगर वो ऐसी सिटी में शिफ्ट कर जाता है जहाँ पे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कॉज बन जाएगा डिसीज के लिए, राइट? बट एक ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी अदरवाइज फिट है, जो ऑलरेडी हेल्दी है, तो अगर वो एक बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी में शिफ्ट कर भी जाता है, स्टिल ही और शी विल बी एबल टू सर्वाइव वेल एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, राइट? तो ये भी एक कॉज ऑफ डिसीज हो सकता है. उसके बाद हो सकता है बॉडी पार्ट्स कुछ माल फंक्शन हो जाए, बॉडी पार्ट्स ठीक से काम नहीं करें, लाइक हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा, हार्ट डिसीजेज हैं, या फिर हो सकता है इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, पेनक्रियास ठीक से काम नहीं कर रही, लीवर में कुछ प्रॉब्लम है. So these are all also examples of causes of diseases. And after that, last but not the least, poor health and undernourishment, right? At this point, we are already well aware about this concept called as health. हेल्थ में क्या क्या आता है? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ. तो हो सकता है मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं हो, जिसकी वजह से अलग अलग टाइप की डिसीजेस हो सकती हैं, राइट? मेंटल हेल्थ की वजह से डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, और अगर अंडर नरिशमेंट है तो उसकी वजह से फिजिकल तो डिसीजेज जो है, हम फिजिकली फिट रह ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगा, राइट? तो अगर if someone asks you that what are the causes of diseases, so your answer should be that they can be basically categorized into two major parts, which are infectious and non-infectious causes. Though if we try to enlist them, they can also be categorized as primary causes and secondary causes. So usually the primary causes are pathogens, and secondary causes can be like genetic disorders or environmental pollutions, and the tertiary causes can be malfunctioning of body parts or poor health. Okay, so after that, now let's just shift our focus again to the diseases, and the first that we are going to discuss is infectious diseases. Kindly remember that the infectious diseases are also called as communicable diseases, because communicable में word क्या आ रहा है? Communicate. Communicate का करने का मतलब क्या होता है? To talk to one another, right? एक दूसरे से बात करना. तो कम्युनिकेबल में क्या होगा? एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे स्प्रेड हो जाना. So the diseases which spread from an infected person to a healthy person. बट कुछ ना कुछ तो तरीका होगा, कुछ ना कुछ तो मीन्स होंगे जिसके थ्रू वो स्प्रेड हो सकते हैं. यस, थ्रू एयर, वाटर, फूड, वेक्टर्स, फिजिकल कंटैक्ट और सेक्शुअल कंटैक्ट. अभी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही टर्म न्यू है, दैट इज वेक्टर्स, राइट? So we'll be discussing about vectors in next few slides, okay? So now let's just see what are the examples of infectious diseases. They can be common cold, chickenpox, right? Typhoid, tuberculosis or TB, malaria, and AIDS. Okay, so they can be transmitted from one person to another person. Okay, after that, next is non-infectious or non-communicable diseases, okay, which do not spread from an infected person to a healthy person. Always remember, sometimes you can be asked the question that what's the other name of non-infectious disease. So the answer should be it's non-communicable disease, and you can also be asked that why is it called so.
So your answer should be because they are not spread from an infected person to a healthy person, right? Examples of non-infectious diseases are diabetes. नॉर्मली सब लोगों के घर में या फिर थोड़ी सी एक्सटेंडेड फैमिली में डायबिटीज़ का तो पेशेंट मिल ही जाता है, राइट? इतनी ज़्यादा कॉमन डिसीज़ है। बट आपने ऑब्जर्व किया होगा कि डायबिटीज़ ऐसा नहीं है कि अगर आप डायबिटीज़ वाले पेशेंट के साथ बैठकर खाना खाते हो या उनके क्लोज कंटैक्ट में रहते हो या उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हो तो ऐसा नहीं है दैट डायबिटीज़ गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट? So that's an example of non-infectious disease. Next is cancer. Cancer also doesn't get transmitted from one person to another if you stay in proximity to the patient, right? And in addition to that, next is high blood pressure. So after that, now let's just discuss about some non-infectious diseases. अगर हम थोड़ा सा non-infectious diseases के बारे में सोचते हैं, if we try to focus on that, जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज है ना, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज. दिस स्लाइड इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. दिस इज फॉर जस्ट फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन. आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसीजेज, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस, राइट? तो जो हमारी नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं वो अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं. कौन सी अलग अलग टाइप्स की हो सकता है? कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस डेफिशिएंसी की वजह से हो जाए. डेफिशिएंसी मतलब कमी हो जाना. हो सकता है न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए या फिर हार्मोन्स की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, विच कैन लीड टू डिसीज. एग्जाम्पल इज डायबिटीज. डायबिटीज किसकी वजह से होता है? इंसुलिन की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन. You all are aware about pancreas in human body, right? आपको पेनक्रियास का पता है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी किया है. So pancreas is also responsible for secreting a hormone called as insulin. Now the question arises is that what does insulin do in human body? इंसुलिन हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है. जब भी आप खाना खाते हो, चाहे आप शुगर नहीं इनटेक कर रहे, बट स्टिल जो भी आप फूड लेते हो उसमें नेचुरल शुगर्स कुछ प्रेजेंट होती हैं, चाहे आप नॉर्मल चपाती ही खा रहे हो, राइट? अगर आप मिल्क भी कंज्यूम कर रहे हो उसमें भी कुछ नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है, अगर आप एडिशनल शुगर उसमें नहीं भी डाल रहे तो. फ्रूट्स में भी नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है. मैंगो कितना मीठा होता है, लीची कितनी मीठी होती है, राइट? तो उनमें भी नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट होती हैं. सो व्हाट हैपेंस इन डायबिटीज इज पेनक्रियास जो है हमारी वो इंसुलिन बना नहीं पाती या फिर एडिक्वेट अमाउंट में नहीं बना पाती जितनी हमारी बॉडी को चाहिए. तो हमारी बॉडी में एक्सेसिव शुगर का अमाउंट हो जाता है, हमारी बॉडी उस शुगर के अमाउंट को रेगुलेट नहीं कर पाती. ओके, एंड दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज डायबिटीज, जहाँ पे हमारी बॉडी में शुगर का लेवल रेगुलेट नहीं हो पा रहा एंड वी नीड टू टेक इंसुलिन फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज स्कर्वी. विटामिन सी की जब डेफिशिएंसी हो जाती है ना, उस डिसीज को हम बोलते हैं स्कर्वी, राइट? सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस. इसके बाद जो एलर्जीज है, these are all also these also fall under the category of non-infectious diseases. एलर्जी क्या होता है? जब हमारी बॉडी फॉरेन पार्टिकल्स के लिए हाइपर सेंसिटिव हो जाती है. हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, राइट? तो जब हम फॉरेन एलिमेंट्स के लिए हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं हमें एलर्जी हो गई है. यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि कुछ लोग डॉग से एलर्जिक होते हैं और कुछ लोग कैट से भी एलर्जिक होते हैं, राइट? मतलब अगर डॉग उनके पास आ जाता है एंड ही रब्स पर ऑन द ह्यूमन बॉडी, लोगों को एलर्जी डेवलप हो जाती है. या कैट्स पास आ जाती हैं एंड दे रब देयर फर ऑन ह्यूमन बॉडी, तो लोगों को एलर्जी डेवलप हो जाती है. तो जब आपकी बॉडी किसी फॉरेन पार्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर देती है, देन वी कॉल दैट someone has developed an allergy. Example, asthma, right? Next example of non-infectious disease is cancer, which is defined as uncontrolled growth of certain tissue. जहाँ पे ग्रोथ कंट्रोल नहीं होती, लगातार सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, दैट्स कॉल्ड एज
cancer. Next is mental disorders. Depression, anxiety are all examples of mental disorders and they fall under the category of non-infectious causes. Then addiction of alcohol or addiction of drugs is also an example of non-infectious diseases. आफ्टर दैट द लास्ट इज डीजनरेटिव, मतलब जिसमें हमारे बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स डीजनरेट होने लग जाते हैं या माल फंक्शन, मतलब उनका फंक्शन गड़बड़ होने लग जाता है. एग्जाम्पल है हार्ट डिसीजेस, जिसमें हार्ट प्रॉपरली या ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता. राइट, सो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, यू these diseases are not the part of NCRT, and if you feel like this is difficult to remember, then it's totally okay. You do not need to stress over these things, right? These are just for your general knowledge. Okay, so after that, now because we are very well aware with that what are infectious diseases, now we need to discuss that what do we mean by pathogens and what do we mean by vectors. Okay, so pathogens are the organisms which cause disease, right? And vectors are the organisms which spread the disease. यहाँ पे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल. हम बात करते हैं मलेरिया की. ओके, मलेरिया यूजुअली हम क्या कहते हैं जब किसी को मलेरिया हो जाता है, वो यूजुअली से कि मच्छर काटा होगा. राइट, तो मच्छर काटा होगा इसकी वजह से मलेरिया हो गया. राइट, उसके बाद हमें एक और केस में पता चला कि एक और भी पर्सन है, उसको भी बहुत सारे मच्छरों ने काटा बट उसे मलेरिया नहीं हुआ, और कोई और दूसरा पर्सन है उसको मॉस्किटो ने बाइट किया और उसको मलेरिया हो गया. तो मतलब mosquito is actually not a pathogen because pathogen is the organism which causes disease. So in the case of malaria, the pathogen is a protozoan called as Plasmodium. So Plasmodium is actually the pathogen in case of malaria. Plasmodium वो organism है जो disease cause करता है. मतलब मलेरिया सिर्फ और सिर्फ उसको होगा जिसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम एंटर कर जाएगा. बट अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि मॉस्किटो बाइट करता है तो मलेरिया होता है. तो फिर यहाँ मॉस्किटो का क्या रोल है? बिकॉज प्लाज्मोडियम इज यूजुअली फाउंड इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटो. तो जो प्लाज्मोडियम है ना, मॉस्किटो की बॉडी में मिलता है. तो जब मॉस्किटो हमारे बाइट करता है, हमारी बॉडी में से ब्लड सक करता है, तो ये प्लाज्मोडियम मॉस्किटो की बॉडी में से हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है. जब ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तब ये हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज करना शुरू करता है, तब हम कहते हैं कि मलेरिया हो गया है. राइट, so vector is the organism which doesn't cause the disease but is responsible for spreading the disease. Right, for example mosquito in the case of malaria. ठीक है, खुद अगर मान लो कोई ऐसा मॉस्किटो है जिसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम नहीं है, अगर वो आपको बाइट करता है तो आपको मलेरिया नहीं होगा. लेकिन अगर आपको ऐसा मॉस्किटो बाइट करता है जिसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम है तो फिर मलेरिया हो जाएगा. राइट, अगर हम वेक्टर्स की बात करें, सो वी हैव अनदर एग्जांपल इन दैट इज हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई का हम एग्जांपल लेते हैं. मान लो हाउस फ्लाई किसी ऐसी जगह बैठ जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा एक्सक्रीटरी मटेरियल प्रेजेंट है. सो व्हाट विल हैपन इज कि उसके जो लेग्स होंगी वहाँ पे कुछ पार्टिकल्स स्टिक हो जाएंगे, वहाँ पे कुछ पार्टिकल्स जुड़ जाएंगे. आफ्टर दैट लेट्स जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि कहीं ऐसे ही कोई फूड स्टॉल है या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे फूड को प्रॉपरली कवर करके नहीं रखा हुआ और वहाँ पे आकर हाउस फ्लाई बैठ जाती है. सो व्हाट विल हैपन इज वो जो पार्टिकल्स उसकी लेग्स पे अटैच हुए थे फ्रॉम द एक्सक्रीटरी मटेरियल दैट विल नाउ बी लॉन्च्ड ऑन टू द फूड दैट इज अनकवर्ड. तो क्या हुआ? पैथोजन नहीं है हाउस फ्लाई, उसने डिसीज कॉज नहीं की, बट दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग द डिसीज. राइट, so this is also an example of vector जो disease को spread कर रहा है. So at this point I hope now it's clear that what's the difference between pathogens and vectors. Okay, so after that now let's discuss about some
infectious agents and the various kinds of diseases that are caused by them. And sometimes सीधा सीधा ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है that name some infectious agents and you need to enlist 2 or 3 diseases which are caused by them. Okay, so let's just discuss about viruses. Viruses अब हमारे लिए कुछ नई बात नहीं है। तो पहले अगर हम बात करते कोविड-19 से पहले की बात करते तो कुछ चांसेस थे कि वायरसेस के बारे में लोगों को पता शायद नहीं होता, बट इन द प्रेजेंट टाइम एवरीवन इज अवेयर अबाउट द वायरस एंड one major thing about virus is that virus is on the verge of or virus is between the line of living and non-living. Matlab, when this is present outside the body of a human being, this is called as non-living. And as soon as it enters inside the body of a human being, it is called as living. क्योंकि वायरस के पास अपनी कुछ मशीनरी नहीं है। वायरस के पास सिर्फ और सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल है which can be in the form of DNA or in the form of RNA. जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है ना, so what does it do is it dictates the human cell to perform the functions as the virus desires, right? वायरस जैसा जैसा कहता है हमारी बॉडी वैसा वैसा करती है बिकॉज हमारी बॉडी वैसे वैसे प्रोटीन्स बनाती है. सो इट एक्चुअली यूजेस द मशीनरी ऑफ द होस्ट, राइट? तो वायरस जो है इसलिए ही जब कोल्ड हो जाता है तो आपको बोला जाता है कि कोई यूजफुली कोल्ड की कोई मेडिसिन नहीं है, क्योंकि कोल्ड की मेडिसिन लेंगे तो होगा क्या? वायरस तो हमारे सेल्स को यूज कर रहा है ना. वायरस हमारे सेल्स को यूज कर रहा है तो अल्टीमेटली हम अपने सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे. नाउ ये क्वेश्चन वुड बी कि मैम बीमार हो जाते हैं तो दवाई तो लेते हैं और ठीक भी हो जाते हैं. सो दैट इज एक्चुअली जब आपको वायरल इन्फेक्शन होता है यूजुअली साथ साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है. जो आपको सोर थ्रोट होता है दैट इज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन. तो आप वो जो दवाई लेते हो दैट जस्ट किल्स द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. उसकी वजह से आपको लगता है कि आप ठीक हो रहे हो, बट वायरस के लिए अभी तक यूजुअली कोई दवाई नहीं बन पाई है, राइट? सो एड्स है, चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस बी है, इन्फ्लुएंजा है. These are all examples of diseases caused by viruses. Okay. So now let's just discuss about the diseases which are caused by bacteria. So typhoid है, tuberculosis है, food poisoning है, cholera है. Examples of diseases caused by bacteria. After that, most of the fungi can cause skin infections. Ringworms are the most common example which are caused by fungi. Okay. Next infectious agents are protozoans and the most important disease is malaria. Right? इसका हमें causative agent पता है that is plasmodium. Right? Plasmodium causes malaria, amoebic dysentery, sleeping sickness, all examples of protozoans. Then after that, worms can also cause certain kind of diseases, and the examples are intestinal infections and elephantiasis. Elephantiasis we have already discussed, जिसमें जो leg होती है वो elephant के जैसी हो जाती है. Actually, what happens is जो हमारी बॉडी है ना, इसमें ब्लड तो सर्कुलेट हो ही रहा है. इसके साथ साथ एक और सिस्टम है जिसमें कुछ फ्लूइड सर्कुलेट होता है, उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम. यू विल स्टडी अबाउट दिस सिस्टम इन क्लास 10th. हमारे ब्लड के साथ साथ कुछ और भी फ्लूइड है, लिम्फ बोलते हैं, वो लिम्फ हमारी बॉडी में लगातार सर्कुलेट होता रहता है, राइट? तो एलिफेंटियासिस में क्या होता है, यूजुअली ये डिसीज कोस्टल एरियाज में फाउंड होती है. व्हाट हैपेंस इज एक वर्म है जो कोस्टल एरियाज में लेग्स के थ्रू या लेग्स में एंटर कर जाता है और क्या करता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज को ब्लॉक कर देता है या लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देता है. तो उसकी वजह से लिम्फ जो एक टाइप का फ्लूइड है वो सर्कुलेट नहीं हो पाता और लेग्स में एक्यूमुलेट होने लग जाता है. जब लेग्स में इतना ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाता है तो वो लेग्स स्वेलअप होने लग जाती है. इतनी स्वेलअप हो जाती है कि एलिफेंट के लेग की जैसे इतनी ज़्यादा बड़ी दिखती है. So that disease is called as elephantiasis, right? In addition to that, I hope you all remember that last year you all were provided with deworming tablets, right? In the school, that was albendazole. तो वो क्यों दी गई थी? Because some worms can enter inside your body
and penetrate inside the intestine and cause various kind of infections that are categorized as intestinal infections. Okay, so these are some pictures of how these infectious agents look under the microscope. Let's see how do viruses look under the microscope and how do bacteria look under the microscope. Then example of protozoa as well, Ascaris and Finchi. Okay. So after that, this is an example of skin disease that is caused by Finchi. You already know that the skin diseases are caused by Finchi, and this is an example of ringworm, right? Ringworm आपको पता है कि ऐसे patches से हो जाते हैं skin पे, and Finchi are responsible for this. Then here's the picture of the bacteria, the Staphylococcus bacteria, which is responsible for causing acne. Acne क्या होता है? ये जो teenage है, teenage में in which you are right now, इसमें क्या होता है, जो कभी के बाद कुछ लोगों के फेसेस पे छोटे छोटे से रेड स्पॉट्स होने लग जाते हैं, पिंपल्स जैसे होने लग जाते हैं. So actually they are caused by some bacteria, right? And the name of the bacteria is Staphylococcus. Okay, so that's all about today's class. We will continue the discussion of diseases, and we will also be discussing about the principles of treatment and prevention in the next class.